Okay, we are continuing with the limiting reactant concept. Yesterday we had the concept learned. Today we are having one more question on this before going to the percentage yield. Now look at this. If I read the question, 0.03 gram of Mg mixed with 20 cm cube, 0.1 mole per dm cube HCl. Show by calculation which reactant is in excess. If I follow the SOP, which I always, first of all, you need to understand the question, that what you are given and what you are supposed to find, right? अब मुझे पता है मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और द वन मुझे निकालना है हु इज इन एक्सेस. गिवन वैल्यू के HCl का भी Mg का मास गिवन है और HCl का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है. गिवन वैल्यू शुड नॉट बी अदर देन मोल्स. तो पहला तो काम ये है कि मुझे मोल्स ऑफ Mg चाहिए. मोल्स ऑफ Mg के लिए मास गिवन है तो फिर मुझे 0.03 डिवाइडेड बाय Mg's AR 24 से डिवाइड करना होगा. 1.25 10 to the power minus 3 moles of Mg I have got. Okay, then I have to see the moles of HCl as well. Now for the moles of HCl I don't have mass, I have the cm cube जिसका यूनिट होता है हवरा, वो वॉल्यूम होता है, और मोल पर डीएम क्यूब जिसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है. It's an aqueous. In order to find that small volume of aqueous solution moles, मुझे एक फार्मूला दिया गया है. That formula says N is equal to C into V over 1000. So 0.1 times 20 divided by 1000. So how many moles? 2 times 10 to the power minus 3 moles of this. So first thing first, now we know what we are supposed to, what we have been given, and we have converted them into the moles. And we know in order to find the limiting or excess, the second step, or anything which you are doing, the second step is always to look for the molar ratio. Okay, so what is the molar ratio between Mg and HCl, bacho? Molar ratio is always given in the balanced equation. What is the molar ratio between Mg and HCl? Can you tell me? Yes, so it is 1 mole magnesium is reacting with 2 mole of HCl. Okay, so now I told you कोई ना given हो वो तो x हो जाता है, but यहाँ तो दोनों given है. So दोनों ही मैं लिख देता हूँ. 1.25 times 10 to the power minus 3 यहाँ पे, और दूसरा क्या आता है 2 times 10 to the power minus 3 यहाँ पे. अब in this case the scenario is a bit different from the previous question. Now we have to multiply, we have to cross multiply them like this. अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो HCl के मोल्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1 से, तो वो तो वही रहेंगे 2 times 10 to the power minus 3. ओके, बट जो Mg के मोल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 2 से, तो वो बन जाएंगे 2.50 times 10 to the power minus 3. अब आप देखें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है. विच वन इज स्मॉलर? दिस वन. तो ये क्या बन गया, दिस इज द लिमिटिंग and this is what? Excess. So Mg is in excess and HCl is the limiting reactant. Is it clear now? The second part of the question. What is the second part? Volume of H2. So again we have to follow the SOP. हमारे पास understanding में क्या है कि मुझे क्या given है, क्या find करना है. Find तो मुझे क्या करना है, volume of H2, जो कि एक product है in this equation. Look at this. Here it is H2. वो देखिए इक्वेशन में प्रोडक्ट है, और गिवन क्या है, गिवन दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं. बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वी हैव टू यूज ओनली द मोल्स ऑफ व्हाट, कि कौन से रिएक्टेंट के, लिमिटिंग के. तो इन दोनों में से नाउ आई नो कि हु इज लिमिटिंग, HCl, तो मुझे HCl के मोल्स यूज करने होंगे. ओके, सो मुझे जो गिवन वैल्यू है वो HCl के मोल्स हैं. ओके, जो कि कितने हैं, 2 times 10 to the power minus 3. अब आपको इनके बीच रेशो देखनी है. HCl और H2 के बीच क्या रेशो आ रही है, 2:1.
वो भी इक्वेशन से ही ली है मैंने। तो अगर ये 2 टाइम्स 10⁻³ है तो ये x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10⁻³ मोल्स ऑफ H2। बट वी नीड टू हैव द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इन cm³ के लिए मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 24,000। तो क्या आंसर आ गया? 24 सेंटीमीटर क्यूब। यस, काम इनका चेक कर। 24 cm³। बहुत तेज हैं आप लोग, याद भी नहीं करवाए, उठ के भागते हैं। आज निशान याद रखना है, आज इनको डबल काम देना। ओके, सो 24 cm³ is the volume of H2. Is it clear now? So I think this is a pretty much simple way कि जब अब आज मैंने सिर्फ यही बताना था कि अगर रेशो 1:1 ना हो तब क्या करना होगा। ओके, अगर रेशो 1:1 ना हो तो तब आपने क्या करना होगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, बस वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिससे 2 मोल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे क्रॉस होके, तो उसके मोल्स डबल करके लिख देना है और फिर देखना है कि किसके मोल्स कम है किसके मोल्स ज्यादा है। ठीक है, ये एक दूसरा लंबा तरीका भी है इसको करने का, जो शायद आपने पहले सीखा होगा, जिसमें वो देखते हैं कि अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करके कि किसके मोल्स कितने चाहिए थे उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, को वो ज्यादा है कि वो कम है, वो सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से जॉब डन है, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ओके, अब आप हेडिंग देंगे परसेंटेज यील्ड। ये भी मोल्स के अंदर ही है, परसेंटेज यील्ड। सर आपने कहा था आज आप टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपको टेस्ट मिल गया वापस? जी। अब खोल लें जरा, फिर वही करते हैं अभी। खोलें जरा प्लीज टेस्ट।